Weathering the storm in Arsema. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For two dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? So, what is the story about? It is about a young boy who was trapped in a cyclone, and it is about his journey to find the route back to his village and help his villagers along with his family members. So, on 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsema, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. 27 अक्टूबर 1999 का बात है. प्रशांत की मदर का डेथ हुए 7 ईयर्स हो चुका था. वो अपने एक फ्रेंड के विलेज गया था जो उसके खुद के विलेज से 18 किलोमीटर्स दूर था. इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनांसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. अचानक से शाम होते होते बहुत अंधेरा हो गया और बहुत क्लाउड्स आ गया. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवा इतने जोर जोर से घरों से टकरा रहा था कि प्रशांत इस तरह का सीन कभी नहीं देखा था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted. तो पूरा बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो रहा था. पुराना पेड़ सब उखड़ गया था और crashed to the earth, मतलब ज़मीन में गिर रहा था. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. इतना बारिश का पानी जमा हो गया था और बारिश में घर भी लोगों का बह जा रहा था और लोग खुद भी बह जा रहे थे. The angry waters swirled into his friend's house, neck deep. उसके फ्रेंड के घर के अंदर भी पानी घुस गया. गर्दन तक पानी था. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h. उसके फ्रेंड का घर ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ब्रिक्स का बना हुआ था. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. But आधा रात को क्या हुआ कि उसके फ्रेंड के घर में कुछ पेड़ गिर गया जिसकी वजह से छत वगैरह खराब हो गया और दीवार भी. द क्रेस्ट डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन, रॉट मतलब कॉज्ड बाय द साइक्लोन, and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. So next 36 hours के लिए बारिश बहुत ज़्यादा आ रहा था और ओशन का पानी भी बढ़ते जा रहा था. विंड स्पीड थोड़ा कम चुका था नेक्स्ट मॉर्निंग तक. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. ये सबसे बचने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर्स, प्रशांत खुद और उसका फ्रेंड, सब लोग घर के छत में चले गए थे कि कम से कम पानी तो नहीं आएगा. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse मतलब फर्स्ट झलक of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. मतलब वो सुबह सुबह जब देख रहा था तो वो ये सीन कभी नहीं भूल पाएगा कि वो चारों तरफ किस तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ था साइक्लोन के कारण. सारा घर बह गया, इतना लोगों मतलब डेड बॉडीज फ्लोट कर रहा है और इस तरह से सब कुछ था. अ रीजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी. चारों तरफ खाली गंदा पानी दिख रहा है, टूटा घर दिख रहा है, इनफैक्ट सीमेंट का हाउसेज वगैरह भी. ब्लोटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन. मरे हुए लोग और जानवरों का बॉडी पूरा फ्लोट करते हुए दिख रहा. बड़ा ट्रीज एकदम गिर गया. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. 2 कोकोनट का पेड़ प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी गिरा, बट वो उन लोगों के लिए एक्चुअली में ब्लेसिंग हो गया क्योंकि नेक्स्ट काफ़ी दिनों तक वो लोग उस नारियल से ही अपना गुजारा कर रहे थे. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled मतलब एक ग्रुप में क्लोज होकर बैठना. तो सब एकदम पास बैठे थे. ठंड लग रहा था, लगातार बारिश चल रहा था. बारिश में प्रशांत का मतलब सारा टीयर्स भी बह गया. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone.
वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन? bereaved मतलब किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के डेथ के कारण जो दुख होता है. सो उसकी मदर का डेथ के कारण वो ऑलरेडी दुखी था, सैडनेस था उसके लाइफ में. तो वो सोच रहा है कि क्या मेरा फैमिली सर्वाइव कर पाया होगा या किसी का डेथ हुआ होगा. 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन उसके लिए 2 साल के बराबर था. बारिश रुका और रेन वाटर्स धीरे धीरे रिसीड हो रहा था, पीछे जा रहा था. प्रशांत डिटरमाइंड था कि अब हमको अपने फैमिली को ढूंढने जाना है विदाउट एनी फर्दर डिले. सब लोग उसको मना कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स के फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड के फैमिली मेम्बर्स उसको सब मना कर रहे थे. बट ही डिसाइडेड टू गो ऑन. वो अपने साथ ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. वो अपने साथ इस तरह से एक स्टिक लेकर आगे बढ़ रहा था. वो जगह जगह स्टिक डालकर देख रहा था कि पानी है या रोड है. कहीं कहीं पर पानी कमर के जितना था. सेवरल टाइम्स ऐसा हुआ कि रोड से हट के वो रिवर में जा रहा था तो फिर स्विमिंग करके वो दूसरी तरफ जाता. इस तरह से काफ़ी बार हुआ. फाइनली थोड़ी दूर के बाद उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड दिखे जो खुद वो लोग विलेज ही जा रहे थे. तो ये लोग सब डिसाइड किए हम लोग साथ में जाएंगे. एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, मतलब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकैब्रे. मैकैब्रे मतलब इन्वॉल्विंग डेथ. और ज़्यादा उन लोगों को हर जगह बर्बादी दिखने लगा. लोग और जानवर मरे हुए दिखने लगे. वो लोग काफ़ी ह्यूमन बॉडीज़ को तो पुश कर करके आगे गया. कितने मरा हुआ डॉग्स, कैटल, गोट सबको धक्का दे देकर वो लोग आगे जा रहा था. सो यू कैन ओनली इमेजिन कि किसी का डेड बॉडी को पुश करके आगे जाना मतलब कितना हॉरिफाइंग सीन है. इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. जितना भी गांव ये 18 किलोमीटर के रास्ते में आया, किसी में एक ढंग से घर भी नहीं बचा था. प्रशांत अब जोर जोर से रोने लग गया. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी. वो एकदम श्योर था कि ये डिस्ट्रक्शन तो मेरा फैमिली नहीं सर्वाइव कर पाया होगा. इवेंचुअली वो अपना विलेज पहुंचा, कालीकूड़ा. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. वो एकदम अंदर से डर चुका था क्योंकि जहाँ उसका पहले घर था अब वहाँ पर खाली एक झोपड़पट्टी जैसा छत बस पड़ा है. देयर वेर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज बट जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स. पेड़ में उन लोगों का कुछ कुछ सामान लटका हुआ सा दिख रहा था बस. यंग प्रशांत डिसाइड किया कि रेड क्रॉस का जो शेल्टर है वहाँ जाते हैं अपने फैमिली को ढूंढने के लिए. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. उसको अपनी नानी दिखी. वीक विथ हंगर शी रस्ड टू हिम. वो उसके पास दौड़ते दौड़ते आई, अपना हाथ फैलाई और वो बहुत खुश हो गई उसको देखकर, बिकॉज सब लोग इमेजिन कर चुका था कि प्रशांत डेड है. क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ. सबको जैसे जैसे पता चला कि प्रशांत जिंदा है तो सब लोग वापस आए. प्रशांत एंशियसली स्कैंड द मोटली battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. तो उसका पूरा मतलब ऑलमोस्ट उसके सारे फैमिली मेम्बर्स वहाँ थे. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. वो कुछ नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखा कि सब लोग एकदम उदास है, एकदम ग्रीफ में है. डेथ जैसा फीलिंग हर जगह है. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. इतने लोग मर गए, विलेज का सारा घर बह गया. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around with such a tumult of people. अब लेकिन इतना दिन वो लोग कोकोनट पे सर्वाइव किए, लेकिन अब वो भी नहीं मिल पाएगा. प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ दिस विलेज. वो डिसाइड किया कि अब हम कुछ हैंडल करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं. सो वो यूथ का और एल्डर्स का ग्रुप बनाया और जाकर वो लोग मर्चेंट को प्रेशराइज किया कि आपको राइस देना ही पड़ेगा. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. वो लोग राइस लेकर वापस आए. राइस ऑलमोस्ट खराब हो चुका था लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं था. वो लोग ब्रांचेस जमा किया, फायर जलाया और उसमें राइस कुक करना शुरू किया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days सर्वाइवर्स कुछ खाए हैं.
His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. नेक्स्ट वो क्या किया, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, जहाँ जहाँ गंदगी था वो सबको साफ किया, डेड बॉडीज था, यूरिन था, क्योंकि बाथरूम भी सारा ओवरफ्लो होकर सब गंदगी आ गया। तो इस तरह से वो सारा गंदगी हटाया। कितने लोगों का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ था वो सबको उनका देख रेख करना, उन सब के लिए ग्रुप बनाया। ऑन द 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर पास किया और वहां से ऊपर से कुछ खाना का पैकेट्स गिराया, लेकिन फिर वो वापस पास नहीं किया। तो यूथ फोर्स क्या किया, बच्चों को इस तरह से लिटा दिया गया था, सुला दिया गया था, ऊपर बर्तन रख के, खाली बर्तन। तो इससे हेलीकॉप्टर तक मैसेज पहुंचा कि यहाँ पर भूखे बच्चे हैं। तो उसके बाद से हेलीकॉप्टर रेगुलरली एयर ड्रॉप करते रहा सामान, फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। फिर प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फन मतलब उनके पेरेंट्स का डेथ हो गया। सो वो सबको वापस एक साथ किया। इस तरह से पॉलीथीन शीट से वो टेंट बनाया। वुमेन को बोला कि आप लोगों को उन बच्चों को देखना है, ध्यान देना है कि वो लोग खा रहे हैं या नहीं। और मेन का ग्रुप को बोला गया कि आप लोगों को खाना सिक्योर करना है, आसपास की जगह से, टाउन से, गवर्नमेंट से, जैसे भी हो, और शेल्टर का व्यवस्था करना है। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. फिर कुछ हफ्ता पास होने के बाद वो ध्यान दिया कि विमेन और बच्चे दोनों एकदम उदास होते जा रहे हैं। तो वो विमेन को परसुएड किया कि आप लोग एक NGO का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, और बच्चों के लिए वो स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगा, ताकि सब लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे तो वो सैड नहीं रहेंगे। प्रशांत को खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, तो वो क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किया चिल्ड्रन के लिए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. सब लोग अपना लाइफ को पहले के जैसे बनाने में लग गया था। गवर्नमेंट का पहले का प्लान था कि एक इंस्टीट्यूशन सेट कर देते हैं ऑर्फन और विडोज के लिए, बट सब लोग इसको अपोज किए, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि अगर इस तरह से इंस्टीट्यूट सेट कर देंगे इंस्टीट्यूशंस, तो ऑर्फनेज में बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहाँ बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा। और जो विडोज हैं, अगर सारी विडोज एक साथ रहने लगेगी तो उन लोगों में एक लोनलीनेस हो जाएगा। तो प्रशांत्स ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो वो ये सोचा कि अगर जितने भी बच्चे हैं सबको कोई ना कोई अडॉप्ट कर लेगा, विडोज किसी घर में रहने लगेगी, तो इस तरह से करने से सब अपने कम्युनिटी में ज़्यादा खुश रहेगा। अगर कोई फैमिली है ऐसा जहाँ पर बच्चा नहीं है, तो वो लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। कोई फैमिली है जिसमें कोई एडल्ट नहीं है ध्यान रखने वाला, तो वहाँ पर अगर कोई विडो जाकर रहने लगे, इस तरह से करने से एवरीवन विल बी हैप्पी। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. उसके पास करने के लिए इतना कुछ है कि उसको अपना दर्द दिखाई नहीं देता है कभी, और वो अपने आप हील हो गया फिर हेल्प करते करते लोगों का। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. तो उसके विलेज में जब कोई विमेन या कोई बच्चा बहुत उदास होता है, तब वो प्रशांत का चेहरा देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट प्रशांत टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि उन लोगों को प्रशांत में इतना ज़्यादा फेथ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसेमा।